Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna. Thank you so much, Vinod Prabhu, Rashmi Mataji. Wonderful Kirtan. Where is Gaurangi today, Mataji? She's at Badi Mama's house, Prabhuji. Acha, very Writing good. messages on the chat. Hare Krishna, Hare. Acha, very good. Thank you so much, both of you. So, Hare Krishna, everyone. So, सबका स्वागत है हमारे वैष्णव टिकेट सेमिनार सेशंस के अंदर एंड His Grace Vijayendra Krishna Prabhu is already here. So now today, first we had an introduction session, and today we will take the first dip into Vaishnava etiquette again. So we heartily welcome Vijayendra Krishna Prabhu by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Vijayendra Krishna Prabhu ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada. Okay, so should I start, Prabhu? Yes, Prabhuji. Thank you. I always feel happy whenever I interact with Gurgaon devotees. They are so sweet.
and gradually I am developing my relationship with the devotees and trying to know the Vaishnava qualities which they are possessing more and more. So each one teaches one while being taught by one is the principle which we follow. हर एक व्यक्ति जो है वो सीखेगा भी और सिखाएगा भी. I just wanted to connect myself with the laptop. It'll just take 1 minute. In the meantime, just one or two learnings from the last session. Someone would like to share? Anyone would like to share? Any point of learning from last session? This is the most tricky question, Prabhuji. In the beginning of every class. Okay. So who would like to share what we liked last session till the time? Prabhuji. Yes, Ankita Mataji, go ahead. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Dandavat. Actually, Prabhuji, the example which Prabhuji gave of, how he had to walk 26 floors wearing a heavy boot and then the water bottle, it falls. It really, struck a chord because, we do sadhana and we do so many things and then we do some little anarthas and it's really, you go back to, it's like you go back to zero again. So that was really a very good food for thought and something which I think at least I should contemplate on. Very good. Yes, we should not be like that. Yes, Maharashtra Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Last time when Prabhuji mentioned about the way he has a group and in that group he for offering to Krishna whatever he forgives, whatever he forgets, and he doesn't get angry on somebody, so he writes that in the group. That inspired me very much. So after that, after last week, I've been thinking how many do I keep for a week? 1, 2, 3. So I've been thinking about that. I think that was very inspiring. Even last time when Prabhuji had given this idea, so I also made a WhatsApp group. Not for this purpose. My sadhana is not as strong or as determined as Prabhuji's, but for some other purpose, I also made a group. And whenever I like something, so उस group में मैं ही हूँ, so I leave the comments, I leave everything, so it's easier to get back. Thank you, Mataji. Or this is from Ronnie Prabhu. He's writing. We need 4 things: Siddhant, Sadhana, Sadachar, and Seva. But Sadachar is a make or break it point. An example of ocean of anger, not to get agitated. Yes, wonderful. Thank you so much. Yes, over to you, Virjendra Krishna Prabhu. Thank you, Prabhuji. So, yeah, today also we will discuss something relevant. Actually, correcting others is a part of everyone's life. Whether we discuss this topic or not, everyone do give correction and do receive correction, but may not be in the right mood or the proper mood. So that's why it remains the part of our life, but we do need to upgrade ourselves in terms of consciousness while receiving and accepting corrections. So, okay, so we will start today's session with the Mangala Charan. Om Jnana-Timrandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah Shri Chaitanya-Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Kamlam Shri Guru Vaishnavamsha Tam Sagdatam Sagda Raghunathan Tam Tam Tadivam Sadvaitam Sambhutam Pradina Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagda Vita Shiksha Namo Vishnu Padaya Krishna Shri Bhutale Bhakti Vedanta Swami Tinam Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharane Nirvisheshwanyavadi Paschadestani Hey Krishna Karuna Sindhu Deenbandhu Jagate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapt Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalparu Vishwat Pasantadesh Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri God Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा। तो हमारे भक्त लोग शेयर करते हैं कि
प्रभु जी डीटीज बहुत अच्छी लगती है। बोले डीटीज क्यों अच्छी लगती है? एकदम शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं है, मुस्कुराती रहती है। राधा रानी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि राधा रानी कभी कोई करेक्शन नहीं देती। अरे वही राधा रानी के तो नित्य पार्षद हैं हमारे गुरु महाराज, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये सब तो कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी ही हैं। तो बेसिकली यही तो हमको जब करेक्शन जब तक नहीं देते, जब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं आता। कई बार लोग बोलते हैं हमें गुरु महाराज बहुत अच्छे लगते हैं। गुरु महाराज क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि गुरु महाराज हमेशा स्वीट टॉक करते हैं, कभी करेक्शन नहीं देते हैं। वही गुरु महाराज जब हमको करेक्शन देना शुरू करते हैं तो हम वहां से भागना शुरू कर जाते हैं। तो एक्चुअली whoever in our life is really giving some or other corrections is really helping us to give a proper spiritual shape to our life. जो भी हमारे जीवन में हमको करेक्शन दे रहे हैं, वो हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा उद्धार 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 करने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। तो शुरुआत में तुरंत जब हम भक्ति में आते हैं तो उस समय तुरंत करेक्शंस एक्सेप्ट करना हमारे लिए कठिन हो सकता है। तो इस कारण से शुरुआत में करेक्शन दिए भी नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं पहली बार इस्कॉन उज्जैन आया था, तो मैं मेरे से पूछा शायद वैष्णव चरण प्रभु, तो मैंने पूछा आज तुमने कितनी माला जप की? तो मैंने कहा प्रभु जी आज मैंने 7 माला का जप किया। तो कहा अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम रोज कितनी माला जप करते हो हॉस्टल में जब रहते हो? तो मैं 3rd ईयर में जब था, मार्च में, तो उस टाइम पे आया था। मैंने कहा रोज मैं 1 माला जप करता हूँ। उन्होंने कहा अरे वाह, आज तुमने 700% एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म किया, वेरी गुड। बोला 8 बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है, 1 माला और कर लेना। तो मुझे काफी उत्साह मिला बेसिकली कि मेरी 8 माला हुई है। वहीं जब मैं 1 साल के बाद आया था और सुबह पूछा तुम्हारी कितनी माला हुई, मैंने कहा 12 माला हुई है। तो बोले अरे तुम सुबह से चैटिंग करो, तुम्हारी 4 माला अभी तक रह गई है, अभी तक तुमने 12 माला की है, 4 माला और तुम्हारी रह गई है। तो so at different intervals of time different things are required for us to grow ahead. अभी जैसे मंगल आरती में कोई नया भक्त आता है तो हमारे अरुणाक्ष को बहुत प्रेम के साथ में उसको कभी कोई रसमलाई दे देते हैं, कभी रबड़ी दे देते हैं, कभी पेड़ा संदेश दे देते हैं। बड़ा भक्त बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि वाह वाह, हमको हेड पुजारी ने हमको रसमलाई दिया, ऐसा ऐसा। तो वो तो आया है कभी मंगल आरती में नया व्यक्ति तो उसको मिल गया, पर कोई व्यक्ति जो रह रहा है वो कभी नहीं आता है तो उससे पूछते आज तुम क्यों नहीं आए मंगल आरती में, जबकि वो तो रोज आ ही रहा है। तो क्यों नहीं आए मंगल आरती में, तो उसके लिए डांट पड़ जाती है। उसके लिए वो डांट ही जो है वो उसको ऊपर ले जाएगी। अभी वो नहीं आया और उसको रसमलाई देने से फायदा नहीं होगा, अभी नहीं आया उसको डांटने से ही वो भक्ति में एक स्टेप आगे बढ़ेगा। सो ये एक्चुअली एक कनिष्ठ अधिकारी जो है वो जब कोई करेक्शन उसको मिलते हैं प्रॉपर सोर्सेस से तो उसको बुरा लगता है, मध्यम अधिकारी को अच्छा लगता है। तो ये कनिष्ठ और मध्यमा की टेंडेंसीज में से भी एक ये बाइफर्केशन है कि if we are getting agitated, if getting correction from the right source in a proper way, then that is kanishta mentality. If we are receiving corrections in a proper mood, that is the madhyama mentality. तो हमारे जीवन का लक्ष्य उत्तम अधिकारी तक तो जाना है, परंतु उसके बीच में पहले कनिष्ठा से मध्यमा तक आना बहुत जरूरी है। एक बार इस प्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु लेक्चर दे रहे थे, बोले थे अभी आप लोगों का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो सबने कहा हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। बोले गलत, कृष्ण प्रेम प्राप्त अभी नहीं करना, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त, अनर्थ निवृत्ति से उठ करके निष्ठा के स्तर तक आना। क्योंकि जब तक हम अनर्थों से ही नहीं निवृत्त होंगे तब तक हम कहाँ फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की बात करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जितने जल्दी समझ लेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोग्रेस फास्ट होगा। What does correction means? The act of offering an improvement to replace a mistake. Just definition. When does correction is needed? कुछ एक पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले, जैसे उसकी हेडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। When does correction is needed? What is the need of offering corrections to others? Can't we just remain silent? Who is the right person to offer corrections? Can anyone correct everyone? Who does not? Who should not be offered correction? What should be the spirit before correcting others? Seventh point is healthy ways of offering correction. 8th point, what are the results of harsh correction? 9th point, how to evaluate whether we offered right correction or not. 10th, शास्त्रिक examples. तो ये 10 पॉइंट्स हैं
मैं नोट्स भी बाद में शेयर कर सकता हूँ, आप लोग चाहें तो। तो ये जो है, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में ही ज़्यादातर हमारी चीज़ें जो हैं वो सम्मिलित हो जाएंगी. These points will include most of the things regarding corrections, offering corrections. इसके लिए श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने भी जो हमारे जीबीसी कॉलेज है उसमें एक लेक्चर दिया था. छोटा सेशन है, 20-21 मिनट का सेशन है, और हम लोग को असाइनमेंट्स भी दिए गए थे इसको लिखने के लिए. हालांकि वो थोड़ा सा मैनेजरियल एंगल से था. अभी हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिकल डे टू डे एंगल से इसको ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए फायदा मिलेगा. तो पॉइंट है, when does correction is needed for any minor and major mistakes. When we see the mistake of mind, some little corrections can be offered. When we see the mistakes of heart, हृदय की गलती और मन की गलती, गलतियां भी दो प्रकार की होती हैं. ये कृष्ण कॉन्शियसनेस लाने के बाद ही पता चलता है, नहीं तो बाकी सब लोग तो मिस्टेक को मिस्टेक ही मानते हैं. मन की गलती वो है जिसमें हृदय हृदय मतलब कुछ हृदय इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट एक मिस्टेक ऑफ माइंड हो गया. जैसे हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में कभी सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए ब्रह्मचारी जाते हैं, रस्सी में पता चला दूसरे ब्रह्मचारी की धोती उठा करके पहन लिया, तो मिस्टेक ऑफ माइंड. फिर दूसरा व्यक्ति हो सकता है बोले कि अरे आपने हमारी धोती पहन ली करके, तो मिस्टेक ऑफ माइंड है, माइनर मिस्टेक है. मेजर मिस्टेक है जहाँ पे कोई हमारा अनर्थ इन्वॉल्व है. हाँ, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, तो उसमें फिर मिस्टेक ऑफ हार्ट. जैसे रावणा किडनैपिंग सीता इज मिस्टेक ऑफ हार्ट बिकॉज the intentions are bad. When a person is found to repeat a particular mistake a number of times, then also corrections are needed. And if the mistake comes especially in the category of serious or grave, then definitely corrections are needed. Offering corrections every now and then may put a bad label on us. जो भी हम करेक्शंस ऑफर करते हैं दूसरे को, तो एवरी नाउ एंड देन नहीं करना चाहिए. थोड़ी सी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग दोनों ही रोल तो प्ले कर रहे हैं. हम गार्जियन है तो हम चिल्ड्रन को करेक्शन देना पड़ेगा, हम सीनियर है तो जूनियर को करेक्शन देना पड़ेगा, ऑफिस में भी कुछ एक जूनियर्स हैं तो उनको करेक्शन देना ही पड़ेगा. तो व्हाट इज द हेल्दी वे ऑफ गिविंग करेक्शंस एंड व्हाट इज द हेल्दी वे ऑफ रिसीविंग करेक्शन. अभी जो हम जिस फेज में चल रहे हैं वो करेक्शन गिविंग की हम बात कर रहे हैं. सेकेंड फेज में जब हम करेक्शन रिसीविंग की बात करेंगे, तभी बेसिकली गिविंग करेक्शंस के ये सारे 8-9 पॉइंट्स हैं वो डिस्कशन में चलेंगे. एक प्रश्न मतलब पूछता है, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑफरिंग करेक्शन टू अदर्स. कांट वी जस्ट रिमेन साइलेंट. कुछ गलत हो रहा है तो होने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है. तो क्या ऐसा सही है ना. स्क्रिप्चर सेज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द गुरु एंड सीनियर्स टू हेल्प जूनियर्स. व्हेन डन विद द राइट स्पिरिट, इट रियली हेल्प्स द जूनियर टू ग्रो. ये शास्त्रिक इंजंक्शन है कि गुरु को, पिता को, टीचर को, तीनों को ये अधिकार है कि वो जो है करेक्शंस दें. हालांकि हम एक पॉइंट और भी नीचे आएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कैन एनीवन ऑफर करेक्शन टू एवरीवन, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे. पर ये तीन को तो अधिकार दिया गया है. गुरु को अधिकार है, पिता को अधिकार है, और तीसरा कौन था. जैसे मैनेजमेंट में, इस्कॉन में मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको भी अधिकार रहता है कि हाँ दे हैव टू करेक्ट द डिपार्टमेंट हेड्स और द devotees working under a particular department. And when it is done in the right spirit, it really helps a person to grow. Who is the right person to offer correction? Can anyone correct everyone? The answer is no. Anyone cannot correct everyone. Actually, इसमें देखना पड़ेगा कि ग्रेविटी क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट कोई छोटी सी बात है और तुरंत बोल जाने पे सामने वाला व्यक्ति माइंड भी नहीं करने वाला है, तो डेफिनेटली इट कैन बी कम्युनिकेटेड. बट सी वी ऑल आर कैरिंग फॉल्स ईगो, वी कांट डिनाई दैट. सो दूसरे व्यक्ति भी फॉल्स ईगो कैरी कर रहे हैं. तो व्हेनेवर द करेक्शन इज ऑफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द अदर पर्सन इफ ही इज नॉट सफिशिएंटली हम्बल, ही फील्स बैड. उसको लगता है कि हमने कुछ गलत काम कर दिया, as if I am proved a foolish person. So that is something which is needed to be taken into consideration. So
the devotee offering correction must be practicing what he preaches. Otherwise, what happens? It is not taken seriously. एग्जाम्पल दूंगा, जैसे अभी हमारे एक मैनेजर थे, उन्होंने एक भक्त को बोला कि तुम इतना जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के कीर्तन करते हो, तुम क्या लगता है भगवान प्रसन्न होंगे तुमसे? तो वो उस समय कुछ नहीं बोला क्योंकि ये तो सीनियर है, वो जूनियर को बोल रहे हैं। बाद में वो आकर के मेरे से बोला कि प्रभु जी ये जो डिवोटी मुझे करेक्शन दे रहे थे तो खुद ही चीख चीख के कीर्तन करते हैं। तो फिर जो बात बोल रहे थे वो तो सही बोल रहे थे, पर तो खुद ही चीख चीख के कीर्तन करते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा प्रभु जी जब ये बोले। आप बोलते प्रभु जी तो मैं मान लेता, क्योंकि आप चीख चीख के कीर्तन नहीं करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन ऑफरिंग करेक्शन टू अदर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। जैसे कि एक ये जनरली पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे इस प्रकार से मोबाइल का उपयोग ना करें। अब पर बच्चों की क्या आदत होती है, वो देख के ज्यादा सीखते हैं, सुन के कम सीखते हैं। इसके लिए एक सेशन हुआ था दिल्ली से, एक माता जी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने एक से सेशन लिया था पेरेंटिंग के ऊपर। तो माता जी ने बताया था कि बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स अगर बुक खोल के पढ़े, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़े, कुछ पढ़ें, तो इट विल गिव इनडायरेक्ट इनपुट इन द कॉन्शियसनेस ऑफ चाइल्ड कि मुझे भी बुक खोल के पढ़नी चाहिए। अब पेरेंट्स अगर लेकर के मोबाइल बैठे हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा बुक लेकर के बैठे, तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। दिस इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। So we have to be in the realistic zone while expecting from others. Very important point. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी हम कोई भी चीज अगर खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को बोलेंगे तो वो बहुत ही कम इफेक्ट होगा, बल्कि उससे नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसके लिए जब भी हम किसी को कुछ करेक्शन ऑफर कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चेक कर लें कि आर वी द राइट पर्सन, एम आई, वी कैन बी इन द मनी मैनेजमेंट पोजीशन, बट इफ वी आर नॉट practicing that particular parameter, other person won't accept it. A person whom other person is seeing as their well wisher, this very strong point कि अभी भी जैसे इवन दो आई एम इन मैनेजमेंट, अब मैं देखता हूँ कुछ भक्त गलत गलत कर रहे हैं। सपोज कीजिए कोई भक्त है, वो उसके फेस से देख करके लग रहा है कि एक भी माला जो है, एक नाम भी नहीं सुन रहा है, बैठा हुआ है चैंटिंग कर रहा है, परंतु उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख रहा है कि हरिनाम इसके कानों में जा ही नहीं रहा है। But he is little senior to me. Although I'm in management, I'm not in the right position to correct him. तो मैं क्या करूँगा, काउंसलर ढूंढूंगा, उसका काउंसलर कौन है। काउंसलर पता चलेगा, अच्छा इसके काउंसलर हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। महाराज को फिर मैसेज टाइप करके भेज दूंगा कि महाराज योर काउंसली इज रियली डूइंग अ वेरी बैड जपा, सॉरी टू से दैट यू आर हिज जेन्युइन वेल विशर, काइंडली ऑफर करेक्शंस टू हिम। महाराज का भी फिर स्वीट रिप्लाई आता है, थैंक यू वेरी मच विजयन कृष्ण प्रभु फॉर अपडेटिंग मी। I have so many counsellors, I am unable to see who is doing what at what time, so please always let me know। बहुत positive reply मिलता है महाराज की साइड से। So in that way, that is how I offered correction to that devotee indirectly via medium of his counselor। तो इसमें मेरा रिलेशनशिप भी खराब नहीं हुआ, मेरा जो कंसर्न था वो भी चला गया। अच्छा, इसके बदले में सपोज कीजिए मैं सोचता मुझे क्या लेना देना, ठीक है भाई, मेरा जब से मैं भगवत धाम जाऊंगा, उसके जब से वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको क्या लेना देना। नहीं नहीं, अब सामने हम बैठे और देख रहे हैं कोई चीज गलत हो रही है, तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट डू व्हाटएवर वी कैन। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट विल अल्टीमेटली ब्रिंग सॉल्यूशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वन इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस, वन इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस is the asset of a person in the mode of goodness. Problem oriented consciousness is the asset of person who is deeply influenced by ignorance। तो समस्याएं तो बहुत सारे लोगों को दिखती हैं, पर समस्या में से समाधान निकाल पाने की क्षमता अगर हमें है तो वाकई हम सतोगुण में सिचुएटेड है। नहीं तो प्रॉब्लम्स आर देयर इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। So we have to be solution oriented। A person who has sufficiently invested love in a person is the right person to offer corrections। अभी एक्चुअली जब भी करेक्शन ऑफर करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे एटीएम में से पैसा निकालते हैं बैंक से, एटीएम से, दैट इज लाइक दैट। क्योंकि डिपॉजिट कुछ किया नहीं है, 5,000 रुपए सपोज डिपॉजिट किए हैं और 6,000 रुपए निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निकलेगा नहीं बेसिकली। इन द सिमिलर वे में, इफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड एनी लव इन द हार्ट ऑफ अदर पर्सन एंड जस्ट ट्राइंग कि बस वो हमारी बात सुने, तो कृष्ण कॉन्शियस में तो खासकर नहीं सुनेगा।
कंपनीज में फिर भी हम लोग सुन लेते थे क्योंकि वी आर गेटिंग पेड, बट यहाँ पे तो क्या वॉलंटरीली डिवोशनल सर्विसेज है, तो पीपल आर कमिंग आउट ऑफ द वे टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी to make a person understand or to give corrections. In that way, if unless we have invested sufficient love, it will be difficult. So identify a person who has invested that kind of love, he can be told to offer correction. Eight point 22.4 Srimad Bhagavatam 8th canto 22nd chapter 4th verse. Purport में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं. क्या लिखते हैं? The punishment awarded by the Supreme Personality of Godhead cannot be compared even to the greatest benefit awarded by one's material father, mother, brother or friend. So यहाँ पे punishment awarded by Supreme Personality of Godhead को इतना बढ़ा चढ़ा के श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं. It is the greatest benefit awarded by not it cannot be compared even the greatest benefit awarded by one's so-called relatives. So ये रिसीविंग करेक्शन का एक पॉइंट है कि कभी अगर हमको करेक्शन मिलता भी है भगवान के द्वारा या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, तो इसको हमको एक ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन के रूप में लिखना चाहिए. प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिख रहे हैं. कौन से परपोर्ट में लिख रहे हैं? 8.22.4 में लिख रहे हैं. Fifth point था who should not be offered correction. Nectar of Instruction verse number 6 NOI verse 6 के purport में श्री प्रभुपाद लिखते हैं it is an offense to consider an empowered Vaishnava an object of disciplinary action. It is offensive to try to give him advice or to correct him. तो साफ साफ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी जो empowered वैष्णवा है, खासकर जो भक्ति में हमसे उन्नत है, उसको अगर इस प्रकार से हम करेक्शन दे रहे हैं तो ये एक अपराध है. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 6 में परपोर्ट में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं. तो हालांकि भक्ति के भी कंसिडरेशंस रहते हैं. ऐसा नहीं है कि जस्ट कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत पहले आया था परंतु अभी प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहा है अच्छे से, उसके बाद भी तो कृष्ण कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस व्यक्ति का भक्ति एलिमेंट कितनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन से वो भक्ति के प्रिंसिपल्स को पालन कर रहा है, दैट इज द एक्चुअल डिटरमाइनिंग फैक्टर. और भी अलग अलग कंसिडरेशंस रहते हैं. थोड़ा इनिशिएशन के हिसाब से लोग देखते हैं कि इनिशिएशन कब हुआ. इनका 2010 में इनिशिएशन हुआ था, इनका 2015 में हुआ, तो 2010 वाला सीनियर है, 15 वाला जूनियर है डेफिनेटली. परंतु एटलीस्ट करेक्शंस ऑफर करते टाइम पे ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि रिलेशनशिप हमारे खराब हो जाएंगे. Even if we see some faults in seniors, it should be communicated, discussed with his senior who is in the position of correcting him. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई सीनियर डिवोटी जब खराब कर रहा है तो मैंने उनको भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को कम्युनिकेट किया. और एक शास्त्रिक इंजंक्शन क्या है? Fools or rebellious people should not be offered correction because they will take it in a negative way. So when we are into problem, then तो बोलनी पड़ेगा. But otherwise, when we are understanding the person is in the mode of ignorance, better is not to give direct correction to him. क्योंकि क्या वो rebel करेगा, सुनेगा नहीं बात को. ये चीज मैंने हिस्ट्री भक्ति प्रेम महाराज के जीवन में भी देखी है. कोई व्यक्ति अगर वो शरणागत नहीं होता है तो उसको फिर इस प्रकार से जब तक कुछ मैनेजरियल एंगल इन्वॉल्व नहीं है तो करेक्शन नहीं देते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैनेजरियल एंगल इन्वॉल्व है या उसकी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है तो बोलना ही पड़ेगा फ्रॉम द मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू. अदरवाइज भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली अगर कोई व्यक्ति शरणागत नहीं है तो फिर उसको करेक्शन देने पे वो फिर और रिबेलियस नेचर शो करता है. तो महाराज के जीवन से देखा कि वो अवॉइड ही करते हैं. पॉइंट था व्हाट शुड बी द स्पिरिट बिफोर करेक्टिंग अदर्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बहुत ही गुह्यतम चीज छुपी हुई है. सिंसियर कंसर्न और वी कैन से मदरली कंसर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पर्सन और टू ब्रिंग हिम टू द राइट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने एक बार गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज मैं तो बहुत ही जूनियर हूँ और अभी भी मंदिर में 24 ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो मेरे से सीनियर हैं ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. गुरु महाराज से पूछा था, गुरु महाराज तो बहुत डर लगता है
वैष्णव अपराध के बारे में भी सुना है, लोगों को करेक्ट भी करना है और उनके उनके दोष भी सामने आते हैं और पीपल ऑल्सो एक्सपेक्ट कुछ अगर गड़बड़ें चल रही हैं तो वी हैव टू करेक्ट बिकॉज वी आर इन द रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। गुरुवान ने कहा था कि हाँ, व्हेन यू हैव द राइट एटीट्यूड, when you have the right consciousness, right attitude, at that time Krishna will not see faults or Krishna will not feel bad about you. And if you feel that किसी को आप कुछ बोलोगे और उसको बुरा लग सकता है, then try to do the things through your superior, जैसे हमारे पास श्री भक्ति प्रेम महाराज हैं इस प्रकार से। अच्छा, हर छोटी छोटी चीज के लिए भी तो महाराज के पास नहीं जा सकते ना, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी भी रहता है, थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, और बट स्टिल वी हैव टू परफॉर्म लाइक। अगर हम युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हैं तो हम बोल नहीं सकते कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। गोलियां भी लगेंगी, गिरना भी पड़ेगा, गिर करके उठना भी पड़ेगा, दोबारा से युद्ध करना पड़ेगा। So all these are the situations, but this thing will protect us from Vaishnav aparadh. If we really have the sincere concern that we want to see this person becoming better, we want to see this person growing ahead, going closer to Krishna, then at least Vaishnav aparadh हमको इस प्रकार से नहीं लगेगा। So this concern is very important. Rectification, not rejection. Like example, Indra was corrected by Krishna. So Krishna wanted to see Indra becoming better. So as a fatherly concern, Krishna corrected Indra. And Indra was acting like a ignorant child. जब वो संवर्तक बादल को आदेश दिया था वृंदावन वासियों को परेशान करने के लिए। So similarly, when the counselors correct the counselee, they should also have the same concern. अगर किसी दूसरे कंसर्न के साथ में काउंसलर भी काउंसली को या गुरु भी शिष्य को अगर इस प्रकार से करेक्ट करते जब उनका कंसर्न प्रॉपर नहीं है, then they may also get offense. They may also get offense. Our helping nature should be the driving force, not the false ego. Many a times a person feels the satisfaction of false ego while dominating others, while pointing out others' mistake. So this should not be the case. Otherwise, it will lead to Vaishnav offense. Healthy ways of offering corrections. 7th point. Correct by personal example and association. That is very, very safe and very, very secure. Personal example से ही अगर हम करेक्ट करने का प्रयास करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद शेयर किया था कि नहीं मालूम नहीं, मैं बांग्लादेश में जब श्री भक्ति प्रेम महाराज के साथ गया था, बांग्लादेश में 2012 में, तो उस समय मैं, महाराज तो पहले उठ जाते थे, मैं बाद में उठता था, हम दोनों एक ही रूम में थे, तो मैं धीरे धीरे उठता था, थोड़ा पानी पिया, फिर थोड़ा बाथरूम गया, उसके बाद फिर आकर के बैडिंग वगैरह फोल्डिंग किया, इस प्रकार से थोड़ा ढीला ढाला कारोबार था। परंतु महाराज तो फटाफट जो है स्पीड में काम करने वाले वैष्णव हैं। तो मैं एक दिन देखा कि मैं तो उठा और मैं जस्ट बाथरूम जाकर के फिर जब तक वापस आया, जब तक तो मेरा बेड ही फोल्ड हो गया था, मच्छरदानी फोल्ड हो गई थी, बेडिंग फोल्ड हो गया था। तो मेरे को लगा क्या चैतन्य चरण प्रभु ने फोल्ड किया, क्योंकि वो भी बाजू वाले रूम में ही सोते थे। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मेरे को पता भी नहीं आपका बेड कहाँ पे क्या है। तो मुझे पता अच्छा तो महाराज ने फोल्ड कर दिया। तो मुझे बहुत खराब लगा एक्चुअली कि मतलब मैं तो इतना जूनियर हूँ, महाराज तो इतने सीनियर है, इन्होंने मेरा मच्छरदानी फोल्ड कर दिया, बेड भी फोल्ड कर दिया। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर ऐसा एक भी दिन नहीं लगा, एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने खुद से उठने के बाद तुरंत सबसे पहला काम अपना बेड फोल्डिंग, अपना मच्छरदानी फोल्डिंग ना किया। तो इन दैट वे महाराज करेक्टेड मी, नॉट बाय सेइंग बट बाय हिज पर्सनल एग्जांपल। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम साइलेंटली ऑफर्डिंग करेक्शन। So that is also one of the way, very safe and secure. Another way is speak in a gentle, soft, polite way if possible. Sometimes some hardness may be required, but if possible, when we speak the message but in a gentle way, people appreciate it more. But when we increase our tone, and although what we are saying is correct, but still it hurts the false ego of others. So may offer the polite or indirect speaking, like mother-in-law chastising her daughter for the same mistake offered by the daughter-in-law.
सास जो है वो बहू की मिस्टेक पे डायरेक्टली ना डांट करके अपनी बेटी को डांटती है, जब सेम मिस्टेक जो बेटी करती है, तो उस टाइम पे तो बहू को भी समझ में जाता है अच्छा अच्छा हमने भी उस दिन मिस्टेक किया था, हमको जम के डांट पड़ सकती थी परंतु पड़ी नहीं, बच गए। सो शी आल्सो फील हैप्पी एंड शी आल्सो लर्न्स कि अच्छा अच्छा ऐसा ये दिस इज बैड बिहेवियर, दिस इज नॉट टू बी डन। तो इनडायरेक्ट करेक्शन। एक अच्छा फॉर्मूला सैंडविच फॉर्मूला दिया जाता है, प्लस माइनस प्लस, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में आलू। डायरेक्टली इसी को आलू देंगे तो हो सकता है खाए ना खाए, सैंडविच में भर करके देंगे खाएगा ही खाएगा। तो दिस कॉल्ड सैंडविच फॉर्मूला। तो सैंडविच फॉर्मूले में बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि हम आसानी से करेक्शन ऑफर कर पाएंगे। जैसे कभी किसी की मिस्टेक बतानी है, मैं उसको फोन करता हूँ, हाँ हरे कृष्णा रसिक रमन प्रभु, कैसे हैं प्रभु? हाँ प्रभु जी अच्छे हैं। थोड़ा उनको गुणगान करना शुरू करते हैं, प्रभु जी आपका मॉर्निंग प्रोग्राम कितना बढ़िया है, प्रभु जी बहुत इंस्पिरेशन, आप नृत्य कितना अच्छा करते हैं। उसके बाद थैंक यू प्रभु, सॉरी प्रभु जी, कुछ प्रभु जी मेरे कुछ गलती हो तो बताइएगा। हाँ हाँ, एक छोटा सा पॉइंट भी ऐड करना था साथ में कि आपने जो है उस दिन प्रसादम सर्व करते टाइम पे जो दाल की पूरी बाल्टी गिरा दी थी, आपको जो थोड़ा ध्यान करके इतना फास्ट तरीके से नहीं सर्विंग करना चाहिए कि चीजें अव्यवस्थित हो। तो फिर व्यक्ति फिर एक्सेप्ट कर लेता है, साथ ही साथ में फिर लास्ट में थोड़ा सा और ग्लोरीफाई कर दिया, तो ये सैंडविच फॉर्मूला हो गया करेक्शन देने का। ये हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम है, जैसे ब्रह्मचारी से टॉयलेट्स क्लीनिंग करते हैं। एक बार 15 दिन हो गया किसी ने टॉयलेट क्लीन नहीं किया, ब्रह्मचारी भी थोड़े इधर उधर गए थे, कोई यात्रा में गया, कोई प्रीचिंग में गया, कम थे, तो 15 दिन तक किसी ने बाथरूम साफ ही नहीं किए, बहुत गंदे हो गए। तो एक दिन हमारे एक उत्साही भक्त एकदम बाथरूम में गए और 3-3.5 घंटे तक पूरा बाथरूम क्लीनिंग करते रहे, सेकेंड फ्लोर ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो काफी मेहनत उन्होंने किया, 3.5 घंटे बाथरूम साफ किया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो जो वॉश बेसिन में जो ग्लास रहता है, उस ग्लास को पोंछने के लिए उन्होंने वही स्क्रबर यूज किया जिससे हम लोग प्लेट्स वॉश करते हैं, खाने के बाद प्लेट्स वॉश करते हैं। सो दैट इज अनहाइजीनिक ना, ग्लास में गंदगी भी हो सकती है। तो एक दूसरे ब्रह्मचारी ने देख लिया और उन्होंने आकर के बोला, अरे तुमको अकल नहीं है क्या, तुम ऐसा ये स्क्रबर तुमने ग्लास पोंछने के लिए, वॉश बेसिन पोंछने के लिए तुमने यूज कर दिया, ऐसे इनको बहुत दिमाग खराब। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही करेंगे। बोलो क्या कर लोगे? बोले ठीक है तुमसे तो बात करना ही खराब है। ऐसा बोल करके वो आ गए। कोई समाधान निकला? नहीं समाधान निकला। तो ऑलरेडी दिस पर्सन इन्वेस्टेड हिज 3.5 hours for doing something which no one was doing. So he was expecting the words of encouragement, appreciation, and not the direct correction by someone जिसने बाथरूम कभी साफ ही नहीं किया। तो इसके बदले में क्या हो सकता था? क्या एक कंस्ट्रक्टिव केस हो सकता था? हाँ, कंस्ट्रक्टिव केस हो सकता है कि वो देखते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति ने जो है ये हमारे यूटेंसिल्स वॉश करने वाला स्क्रबर जो है वो यूज करना शुरू कर दिया ग्लासेस को साफ करने के लिए, ठीक है, अनहाइजेनिक है। तो तुरंत ही सबसे पहले तो ग्लोरीफाई कर सकते हैं, अरे प्रभु जी आपका सर्विस एटीट्यूड तो काबिल तारीफ है, आपने अकेले ही पूरा बाथरूम साफ कर दिया। मैं तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता कि मैं अकेले पूरा टॉयलेट्स क्लीनिंग कर पाऊंगा। रियली प्रभु वेरी अप्रिशिएबल। साथ ही साथ में अच्छा आपका स्क्रबर जो है प्रभु जी, मैं स्क्रबर चेंज कर दूंगा, आज ही चेंज कर दूंगा। आई थिंक डिवोटीज जो है ये सेम स्क्रबर जो है यूज नहीं करना चाहेंगे दोबारा से अपनी प्लेट्स वॉश करने के लिए। बट कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, तो छोटी सी बात थी। बट अल्टीमेटली रियली इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव दैट यू अलोन टुक द हार्ड वर्क ऑफ क्लीनिंग द ऑल द टॉयलेट्स। इससे क्या होता, मिस्टेक तो क्लियर हो जाती, साथ ही साथ में रिलेशनशिप की स्वीटनेस बढ़ जाती। पहले केस में क्या हुआ, मिस्टेक भी कम्युनिकेट नहीं हुई और स्वीटनेस बढ़ने का क्या होता, और रिलेशनशिप में और 6 फीट का डिस्टेंस आ गया। तो सो इन दैट वे छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो अब अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वी ऑलवेज लाइक वी कैन नेवर हैव गुड रिलेशनशिप। relationship cultivation is not a one day game. It takes weeks together and months together, years together। जब व्यक्ति आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि हम किन परिस्थिति में क्या रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस को देखते हैं, हमारे सेल्फलेसनेस को देखते हैं, तो इन बेसिस पे अप्रिशिएशन वेक्टर्स कभी शूट अप होते हैं, कभी डिप्रिशिएशन वेक्टर्स जाते हैं। तो एक पूरा ओवरऑल इमेज एक व्यक्ति का बनता है। हम सभी के पास सेंसर्स हैं जो कि हमेशा एक्टिव हैं, जो हमेशा देख रहे हैं अच्छी चीजें, खराब चीजें। So in that way, how responsibly we behave with others is directly proportional to what degree of sweetness of relationship
we will have with others. अदरवाइज फिर हम भूल जाइए कि हमारी कोई रिलेशनशिप अच्छी होने वाली है। एक भक्त जो है वो हमारी ब्रह्मचर्य इष्टा गोष्ठी थी, गुरु महाराज से आकर के बोलते हैं कि गुरु महाराज, नो वन लाइक्स मी इन द आश्रम। Guru Maharaj was shocked to hear this. How can you say like this? I have no friends in the ashram. Guru Maharaj straight away asked him the question that how many times you tried to sacrifice for others, or how many times you tried to cultivate, you yourself came forward in order to develop relationship. So mostly this is the case. जैसे कोई भक्त तो बोलते थे हमसे कोई हरे कृष्णा नहीं करता मंदिर में। हमने कहा आप किसी भी भक्त से अगर हरे कृष्णा आगे बढ़ करके बोलोगे तो वो भक्त आपसे 100% हरे कृष्णा बोलेगा ही बोलेगा। भाई आप नए हो मंदिर में, व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग द अदर्स विल से हरे कृष्णा फर्स्ट यू? ओके, समवन में से, बट दिस इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। पर अगर आप किसी से हरे कृष्णा बोलते हो तो सवाल ही नहीं उठता कि सामने वाला व्यक्ति हरे कृष्णा करके रिस्पॉन्स नहीं देगा। In that way, to live with the realistic expectations is very, very important. Otherwise, like we ourselves are the loser. Whom else will we blame? और एक दिव्यास्त्र, the celestial arrow, which I am going to share with you now. अगर ये सारे फॉर्मूले फिर भी काम नहीं आ रहे हैं, फिर भी हमारे हेजिटेशंस हैं, कोई पॉइंट हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसा व्यक्ति है, तो द सेलेस्टियल एरो इज राइटिंग मीडियम, राइटिंग मेल, SMS और व्हाट्सएप। माध्यम से आप बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। जैसे वी ऑल हैव जॉइंड एक्चुअली टू सर्व गुरु एंड कृष्णा, करेक्ट? अब कभी चूंकि वी आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, सपोज कीजिए गुरु महाराज से ही हमको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आए जो कि बहुत डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट करने के लिए, अभी क्या करेंगे? सामने सामने तो ना बोलने की हिम्मत है नहीं, करेक्ट? अभी क्या करेंगे? वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली। you have come here to serve Guru Maharaj and Guru Maharaj is asking something, but now you are not in a position of doing it because of managerial point of view. There are managerial constants. सपोज कीजिए 10 भक्तों को यहाँ से दूसरे मंदिर में भेजना, अरे उनकी सेवाएं करने वाला ही कोई दूसरा व्यक्ति रिप्लेसमेंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ हमको चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, करेक्ट? तो इन दैट वे we have to communicate to Guru Maharaj by writing in a proper way and ultimately leaving the decision to Guru Maharaj. Our duty as a manager is, हमारा as a manager क्या कर्तव्य है कि हमको जो है सारी सिचुएशन सामने रखनी पड़ेगी, बिकॉज हम डे टू डे स्थिति से डील कर रहे हैं, हमको सारे स्टैटिस्टिक्स क्लियर है कि क्या करने से क्या हो जाएगा, तो सारी सिचुएशन सामने रख के फाइनल डिसीजन पे गुरु महाराज पे छोड़ देते थे, और अल्टीमेटली वही होता था जो बेसिकली एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो गुरु महाराज भी समझते थे हाँ ठीक है, ऐसा है तो ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस। So this is one of the toughest situations I am discussing. So in our life situation also, if something like this comes, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे हमको डिफिकल्टी हो रही है, सामने वाला व्यक्ति का ईगो थोड़ा बड़ा है या कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, उससे हम भी इफेक्ट हो रहे हैं पर फिर भी नहीं बता पा रहे हैं, राइटिंग मीडियम इज द वन ऑफ द वेरी बेस्ट मीडियम। यू कैन फ्रेम योर थॉट्स नाइसली, सैंडविच फॉर्मूला भी लगा सकते हैं उसमें, यू कैन फ्रेम योर थॉट्स नाइसली एंड कैन कम्युनिकेट टू पीपल। सी मैंने पहले भी डिस्कस किया, ISKCON लीडरशिप संघ मीटिंग अटेंड किया, NIDC में, ICC में, ज्यादातर लीडर्स ने क्या डिस्कस किया, सबसे बड़ा डेमन है डेमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये डेमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, इसी की वजह से सारी समस्याएं होती हैं, चीजें क्लियर नहीं कर पाते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी डिफिकल्टीज, हमारी सिचुएशंस, कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, उसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत बहुत भर भर के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन माध्यम का उपयोग करके हम चीजों को सुलझा सकते हैं। जैसे कभी हम लोग पतंग उड़ाते थे तो गुच्छा हो जाता था, तो एक तो समाधान है सीधा लिया, तोड़ दिया, गांठ बांध करके जोड़ दिया। ऐसा रिलेशनशिप में नहीं कर सकते हम, ऐसा रिलेशनशिप में नहीं कर सकते, हमको उसको बैठ करके सुलझाना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ से कहाँ क्या फंसा है, उसको सुलझाना ही पड़ता है। जब तक पूर्ण हमने प्रयास नहीं किया सुलझाने के, जब तक तोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। So in that way, life is also like that. Next point. What are the results of harsh correction? किसी से भी हमने कैसे तो भी बोल दिया, उसका नतीजा क्या होने वाला है? Harsh correction is like operation without anesthesia. डॉक्टर बोल सकता है कि पेशेंट हमारे पास आया था और हमको तो ऑपरेशन करना था, तो हमने ऑपरेशन कर दिया। अब सोचिए कि कभी हमारा कोई ऑपरेशन करे एनेस्थीसिया दिए बिना, तो
हम कितने देर तक ऑपरेशन करवा पाएंगे, हम बीच ऑपरेशन से ही भाग जाएंगे. So in that way, harsh corrections are like operation without anesthesia. चीजें हम सही कर सकते हैं, परंतु वो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा बेसिकली. ऐसा नहीं होना चाहिए ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड. बोल सकते हैं हाँ हम सफल डॉक्टर हैं, ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा, पेशेंट से हमें परवाह नहीं. तो दैट पेशेंट ऑफ रिलेशनशिप मस्ट बी अलाइव. ऐसा नहीं कि हमने अपना कार्य कर दिया. व्हाट इज पेशेंट इंडिकेटिंग हियर? दैट पेशेंट इज द पेशेंट ऑफ रिलेशनशिप, that must remain alive. So we should not act in a way that the patient is dying. Person is feeling broken-hearted and feels rejected, dejected, then it's not good. So it's also like sometimes it's also like a child whom we are feeding and he is vomiting out. So there's no use. There's no use. खिला दिया हमने जबरदस्ती और फिर उसको कुछ अंदर लिया भी नहीं और वॉमिट आउट कर दिया. हाँ, जैसे कभी सीनियर ने किसी को कुछ बोला, डांट दिया, डांट करके उसको तंग कर दिया, वो तुरंत कुछ नहीं बोल पाया, मतलब तुरंत उसने खा लिया, फिर बाहर जाकर के उसने वो मैसेज नहीं लिया बल्कि उसने वॉमिट आउट कर दिया. तो इट्स ऑफ वेरी लेस यूज. एक बार मेरे साथ ये हुआ था. हमारे यहाँ टाइमिंग चेंज हो गया था प्रसादम का. क्या टाइमिंग था बोले 9 बजे और 1 बजे. पहले प्रसादम का टाइम था 9 बजे और 3:30 बजे. तो 3:30 बजे से घटा करके 1 बजे कर दिया. एकदम एब्रप्ट चेंज आ गया था. तो अभी हम लोग सब किचन के प्रसादम पे ही डिपेंडेंट है. तो बहुत सारे ब्रह्मचारी जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि एकदम से जो 3:30 बजे खाते थे तो एकदम से 1 बजे कैसे भूख ही नहीं लगती थी. मैंने इवन देखा कि हिज ऑनरेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी जो है उन्होंने ब्रेकफास्ट एस्केप करना शुरू कर दिया ताकि वो एक बार में ही सीधा 1 बजे ले लें. तो मुझे लगा अरे ये तो दिस सिस्टम, न्यू सिस्टम इज ग्रेटली डिस्टर्बिंग द माइंडसेट ऑफ डिवोटीज. सो दिस इज नॉट फेयर. अरे महाराज के लेवल तक पे दिक्कत होना शुरू हो गई. पुरानी बात है, 2013-14 की बात होगी. उस समय मैनेजमेंट में नहीं था. तो मैंने सोचा दिमाग लगाओ क्या करूं क्या करूं. तो फिर मैं सोचा कि मैं एक ब्रह्मचारीज की लिस्ट तो मैं ही बनाता था. मैंने सोचा कि इसमें मैं वोटिंग सिस्टम कर लेता हूँ. मैं लोगों से वोट ले लेता हूँ कि किस व्यक्ति को 3:30 बजे का टाइम पसंद है और किस व्यक्ति को 1 बजे का टाइम पसंद है. तो सभी लोगों में से केवल 4 से 5 ही ब्रह्मचारी थे जिन्होंने जो है 1 बजे के सिस्टम पे वोट दिया था. बाकी सभी ने 3:30 पे वोट दिया था. तो ये जो है मैंने शीट ले जा करके मैनेजमेंट में सबमिट कर दिया. मुझे लगा मैंने बहुत बढ़िया काम किया, परंतु मुझे मैनेजमेंट ने बहुत डांटा कि दिस इज नॉट गुड. Actually, you are not authorized to do this. This is called politics. That if you want to do something, then you are just trying to use you are just trying to use some alternate means to do that. मुझे बहुत खराब लगा कि मुझे तो मैं तो अच्छे इंटेंशन से ही किया था, फिर मुझे इतनी डांट करके क्यों पड़ गई करके. तो ठीक है, बाद में तो मैंने संभाल लिया, बट एट दैट टाइम आई फील वेरी वेरी रिजेक्टेड और डिजेक्टेड. मुझे लगा ठीक है अभी तो आज से मुझे कुछ करना ही नहीं है. सही होता है तो चीज ठीक है, गलत होती है तो चीज ठीक है, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इमर्स्ड इन माय हार्ट. इसी के बदले क्या द सेम मैसेज इफ someone would have communicate to me that this is not good, ये सेम मैसेज कम्युनिकेट करते पर इस प्रकार से डांटते नहीं, लताड़ते नहीं, तो मैं शायद फिर भी इसको समझ पाता और डिजेक्टेड फील नहीं करता. उसके बाद फिर मैंने 1-2 महीने तक कुछ किया भी नहीं था. आई वाज टोटली साइलेंट. सो इन दैट वे we may be correcting someone, but harsh correction may lead to demotivating someone. So the dynamics of offering correction must be known to us. As I already said, like we are always in a situation where we have to offer corrections. Either we are the senior elder brother or parents or some reputed position in the company or in management, wherever we are, we have to learn the dynamics of offering correction because we can't escape it. So we have to always remember that we want to destroy the ignorance in the heart of the devotee and not the devotee himself. है ना, आँख का we have to remove cataract from the eyes, not the eyes itself. So that must be clear. 9th point, how to evaluate whether we offered the right correction or not. The answer is a person will feel motivated to follow the right track rather than feeling suppressed. A person will express gratitude and will come forward to have relationship with us.
Many times Srila Prabhupada offered correction and the devotees feel motivated because that kind of thick relationship was there. So, so in that way, person will feel motivated actually. So that's the right way. And there are some examples as well. Like Krishna corrected the mentality of Indra. Krishna corrected the mentality of Brahma Viman Lila. Krishna corrected Bali Maharaj by taking the incarnation of Vaman Dev. So in that way, we can see Krishna corrected Kalia. That was heavy correction. So Chaitan Mahaprabhu, Madhya Lila, 9th chapter, 140 verse, Chaitan Mahaprabhu has understood the misconception of Venkat Bhatta, and to correct it, the Lord talked in a joking way. So, Swarup Damodar corrected Bhagwan Acharya. Swarup Damodar corrected Govinda when he said that Chota Haridas must have taken poison and would have committed suicide and would have become the ghost. Swarup Damodar corrected this mentality of Govinda. So in that way, we can see the examples in CC, Bhagavatam. So in that way, we can see the scriptures is also full example. So after hearing so much, a question may come in the mind that who will take the trouble of remembering so many points? But a wise man will not think like that, because we know what it means to have a good relationship and what it means when that good relationship breaks down. The one who values relationship will also value the above mentioned points. So in that way, we have to take the responsibility of acting wisely, not whimsically. Thank you very much. Hare Krishna. In the next times, we can discuss how to receive corrections or the proper mood of receiving corrections. Because this was a big session, मैं तो उसको फिर भी थोड़ा सा गियर 4 में गियर 5 में लेकर के चला एकदम कंटिन्यूअसली. अभी थोड़ा सा आप लोग से सुन सकता हूँ, 10-11 मिनट है. कुछ फीडबैक, कोई पॉइंट जो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ या कोई प्रश्न किसी का तो. Hare Krishna. So thank you Vijendra Krishna Prabhu. So if you have any questions, अगर कोई हमारा प्रश्न है या कोई कमेंट है या कोई ऐसी सिचुएशन जिन पॉइंट्स के ऊपर प्रभु जी ने बताया जिसपे हमारा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, we can share, or both positive or negative, we can share that. So please, you can write on the chat or raise your hands, and then we can request you to. This Ronnie Prabhu has sent the question, Prabhuji. Okay. In the chat, he's saying, Hare Krishna Prabhu, can you please explain again on the offense to considered empowered Vaishnavas to give corrections? Oh, okay. Who should not be given correction के बारे में nectar of instruction में जो श्री प्रभुपाद लिखते हैं. Yeah, so actually, like the guru should never be offered correction by a disciple. And so similarly, those Vaishnavas who are like guru, they should also not be offered correction. So this is not good. तो देखना पड़ेगा कि हमारी क्या स्थिति है और सामने वाले वैष्णव की क्या स्थिति है. तो ऐसी चीज जो ज्यादा ही डेविएटिंग है और सामने वाले वरिष्ठ वैष्णव हमको देख रहे हैं, तो उनसे वरिष्ठ वैष्णवों को बता करके भी उसका हल हो सकता है. पर डायरेक्टली अगर हम ही करेक्ट करेंगे, सो द पर्सन विल टेक इट इन ऑफेंसिव वे. तो इसके लिए हमको सावधान रहना बहुत जरूरी है. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 6 वर्ष के परपोर्ट में श्री प्रभुपाद लिखते हैं सर. इसको मर्यादा व्यतिकरण कहते हैं. जैसे एक बार इस दादा श्याम प्रभु शेयर कर रहे थे कि कोई सीनियर वैष्णव की कोई सीनियर डिवोटी क्लास दे रहे थे और बाद में उन्होंने बोला कि इज एनीवन इज हैविंग एनी कमेंट. तो राधे श्याम प्रभु ने हाथ उठाया और कमेंट दे दिया. बाद में फिर राधा गोपीनाथ पुन उनको करेक्ट किया कि यू आर अ जूनियर फेलो, ही वाज अ सीनियर पर्सन, हाउ कैन यू गिव कमेंट ऑन हिज क्लास. राधे श्याम प्रभु हिमसेल्फ वाज शेयरिंग इस प्रकार से हमको कमेंट नहीं देना चाहिए. क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, but we can't give comment when some elevated devotee is giving the class. We can appreciate some correction in the class is not good. In that way,
There is another question from Ronnie Prabhuji. Yeah. He's saying, Hare Krishna Prabhu, can you please explain again how to evaluate point? Can you explain again how to evaluate? Can you explain, Ronnie Prabhu? Can you unmute and explain? Yes, Prabhuji. Prabhu, there was one point that, like, after the hard ways of corrections, but how do we evaluate that? So that I think I missed it, or can you explain a little more on that? Evaluation what? Like the position of a Vaishnava? Like about corrections, Prabhuji, what to give and what not to, or like there was one point in the heading which you mentioned. See, there are three kinds of mistakes now: simple, serious, and grave. Correct. So when a person is committing some grave mistakes, so definitely some heavy correction is required. So if we are not in the position of giving that heavy correction, better to remain aloof. अभी कोई सिंपल मिस्टेक है, कोई सिंपल सी चीज आपको किसी को बतानी है, तो वो तो बता भी देंगे हम हल्के हल्के विचार में, तो कोई इतना कोई माइंड नहीं भी करेगा. सो अल्टीमेटली वी हैव टू यूज आवर ओन विजडम एंड मैच्योरिटी कि कितना एक्सेप्ट व्यक्ति कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा. जैसे जैसे हम लोग कभी महाराज के साथ ट्रैवल करते हैं, कुछ छोटा छोटा कुछ चीज रहता है, कुछ मोबाइल में महाराज कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं ढूंढ पा रहे, तो छोटी छोटी चीज तो हम लोग को बता दें, बिकॉज इवन ही वोंट माइंड. So because that is not from offering correction, but that is in order to help the person. So in that way, so Rameshwar Gaurang Prabhu have a question. Yes, Prabhuji. Yeah. Yes. Hare Krishna Prabhu. Thank you so much, Prabhuji, for taking such an important topic, and it was very nicely done. Prabhu, one question that I have is that you explained that we should approach a counselor if sometimes that if we do not have any relation for correction or we see something which is not happening right way. At times when we approach the counselor and when he is giving correction to the person with which that we shared the experience, the discussion is so obvious that it was able to make out that who actually submitted that problem. Then it becomes very awkward situation, Prabhuji. Then what to do in such cases? What I can say, like many times I also face the situation where I am also doubtful that my name will be brought in front. So then I maintain the honesty of my part that after the person got corrected from his counselor or senior, I also go to the person and says that, oh, I had a positive intent in my heart. So that's why instead of telling about this truth of yours to anyone and everyone, I just approach to the person who was really a sincere well-wisher and he won't leak the information as well. So in that way, expressing my sincere intent to that person also helps him to understand my situation. So that honesty and integrity aspect always helps us, even while we are dealing with the complicated situation of offering or being the part of offering correction to others. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. I never thought of this. It's a very nice. I'll definitely try. Actually, being a part of management, I have to be very, very active in this regard, because on a daily basis, I have to deal with such situations. Some tough people whom we can close our eyes. Na? If we will close, then others will suffer. Yes. So in that way, we have to really be proactive in this regard. We are not in the position of not being proactive. Anyone, any point from the class, if they like, they can share. And yes, Prabhu, I just wanted to add on what Ramesh Gaurang Prabhu said, that even I had experience that long term such devotees appreciate. Even, it is the Shreyas and Prayas. So, one may feel, किसी को हो सकता है उसे बुरा लगे कि यही होंगे जिन्होंने शिकायत लगाई है या बताया होगा. But many times I've experienced that a devotee goes and he feels right gratitude in his heart कि वो मेरे सच्चे मित्र थे, उन्होंने बोला, सो ऐसा हुआ, एंड देन आई फील करेक्टेड, और जैसे प्रभु जी ने बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट sincerity or honesty of heart in us, that I have no envy, I have nothing, I just want him to make progress, but मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है ऐसे, जब कई बार 2 महीने बाद, कई बार 2 साल बाद, कि that devotee feels great gratitude कि somebody helped me
and for he was not envious of me, like this. एक्चुअली एक बुद्धिमान व्यक्ति तो बहुत ही अप्रिशिएट करता है अगर उसको कोई वाकई कोई ऐसा करेक्शन देता है जिससे उसके जीवन में बदलाव आने शुरू होता है। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो पूरे से फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म में चल रहा है। बट पर्सन इन द मोड ऑफ गुडनेस ऑलवेज अप्रिशिएट अ लॉट। जैसे मुझे अभी आई एम स्टिल वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माय मदर, माय ओन मदर, क्योंकि जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे एक ऐसी आदत डाली कि थाली में से कुछ भी छोड़ने का नहीं। थाली में से जितना लो उतना पूरा आपको फिनिश करना है। साथ ही साथ में थाली से कोई चीज़ बाहर नहीं गिरनी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, रूम के बाहर जाओ तो लाइट को हमेशा बंद करना चाहिए, तो रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज को कैसे रिस्पेक्ट करना है। सो दीज ऑल थिंग्स आई लर्न फ्रॉम माय मदर फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। तो ये सारे दीज ऑल थिंग्स बिकेम माय एसेट एक्चुअली। कभी भी मैं कहीं भी गया या कुछ हुआ तो पीपल अप्रिशिएटेड ऑल दीज सिंपल सिंपल पॉइंट्स। हाँ, तो अदरवाइज फिर क्या होता है कि चीजें हमारे अगर संस्कार में नहीं रहती हैं तो फिर even though we may be good in different devotional aspects, but we may be committing these simple mistakes which will decrease our appreciation in others' eyes, है ना? तो अभी जैसे ट्रांसफर रूम में कोई भक्त है वो नल खोल करके ही बर्तन मांजते हैं, तो जितने भक्त आते हैं बोल कुछ नहीं पाते हैं पर सबको खराब लगता है, अरे इनको दिमाग नहीं दिया भगवान ने, पूरा नल खोल करके बर्तन वॉश करने की क्या आवश्यकता है। बोल कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी धीरे थोड़े से सीनियर है, परंतु अननेसेसरली एक नेगेटिव फीलिंग अलग अलग वैष्णवों के मन में जनरेट होती है ना। तो किस प्रकार से दूसरों की चप्पल पहन करके नहीं जाना या दूसरों की क्लिप निकाल करके अपनी अपने कपड़े में नहीं लगाना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि भक्त लोग करते रहते हैं खासकर हमारे आश्रम लाइफ में। तो परंतु ये सारी चीजें हमें बहुत मदद करती हैं। Many a times, Ronnie, to question, many a times there's a very strong urge to offer corrections due to a fault finding mentality. But as I also understand that I don't have to offer corrections which I myself are not following. But many a times I end up giving corrections how to rectify this. As I mentioned, like still the correction can be given, but not by us, by someone else who has the positive intent in his heart. देखना पड़ेगा कि इसके इसके लिए किसके हृदय में माता का प्रेम है who is having the mother's love for this person, so that person will be the right person उसको अप्रोच करके उसे करेक्शंस ऑफर करा सकते हैं and there's won't be any problem. Okay, so it's 8:30 now. Let me get the punctuality marks 10 out of 10 by finishing the class on time. We will meet again next Friday sharp 7:30. Yes. Thank you so much, Vijendra Krishna Prabhu. We are very grateful. And if possible, Prabhuji, please share the notes also. Yeah, I'll share the so, notes. so we'll remember it. So thank you so much. And we will all of us will loudly chant one Hare Krishna Maha Mantra to thank Vijendra Krishna Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Vijendra Krishna Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you so very much, devotees. I feel very happy all of you have come to hear about this topic. ये थोड़ा सा टॉपिक कई बार लग सकता है कि रिलेटेड नहीं है, या कई बार लगता है कि ये मंदिर में होते होंगे पर यहाँ नहीं है. बट जैसे हमारा संघा बड़ा होता है, where we have more people, then we'll find कि dealings between devotees are very important. And this will also help. Many times I feel I'm learning in devotional life and applying in my so-called material life with family, with friends, because, so it helps us improve as a person also. At least to me, it helps. So I hope it helps you also. And thank you so very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.